In this video, we'll try to crack the secrets behind jumbled paragraphs in 5 minutes. Of course, we have to have a good amount of practice when it comes to para jumbles. But अगर एक छोटा सा ready reckoner देख रहे हो, then have a look at this video. It will clear some of your concepts when it comes to para jumbles, especially at the CET. So सबसे पहले देखते हैं types क्या क्या होते हैं jumbled paragraphs के. The first type that I have here is single question, single sentence. अब यहाँ पे क्या होगा, एक sentence होगा जिसको 4 parts में divide किया होगा and you will have to figure out which of the arrangements will work the best. Typically ये question type होता है. Now this is the easiest question type because एक sentence को अगर तोड़ा होगा तो उसको वापस rearrange करना becomes very easy. इसको तो attempt करना ही चाहिए. The second question type that we have here is single question, but there are multiple sentences that are there. इसका मतलब क्या होता है, there will be a paragraph, बहुत ही छोटा सा paragraph होगा. CET के context में बहुत लंबे paragraphs नहीं आते, as was the case with CAT, but यहाँ पे single question होगा, 4 sentences will be there, and you will have to rearrange them to create a paragraph. अब ये generally moderate होते हैं, typically 1-2 sentence के connectors अगर समझ में आ जाते हैं, that I am going to cover on the next slide, and if you can figure out using the options, you will be able to answer most of these questions easily. तो इतना issue यहाँ पे नहीं होना चाहिए. The third question type is the one that is the most difficult one जो CET में आ सकता है, which is multiple questions and single paragraph. तो paragraph एक ही होता है, कभी कभी उसके अंदर ना कुछ conditions दिए होते हैं. Let's say for example, F is going to be the 5th sentence of the paragraph. अब बताओ कि first sentence of the paragraph कौन सा होगा, last sentence of the paragraph कौन सा होगा, which one will follow sentence B. तो ये सारे questions यहाँ पे आ सकते हैं. So that is basically the toughest question type. I will generally advise people to not go for this question type at the very beginning. बिल्कुल मत करना है इसको, नहीं तो बहुत ज़्यादा time pass होगा. Especially if you are looking at this video and you are not very good at verbal ability, please don't get into these kind of question types. जो last में दिया है वो बिल्कुल मत करना, नहीं तो बहुत टाइम पास होगा एंड यू विल नॉट गेट दी रेलेवेंट मार्क्स एज वेल. अब देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए यहाँ पे. The first thing is you have to understand भाई nouns और pronouns को group करके मुझे क्या मिलता है, right? So I should know which pronoun is referring to which noun. If somewhere the paragraph you know is about Beethoven, let's say, and Beethoven करके यहाँ पे पहले बता दिया है and उसके बाद बोला है he was a great musician, let's say, ऐसे कुछ बताया है वहाँ पे. So then you should know that okay Beethoven के बाद ही आने वाला है. So that is basically what you need to understand. Nouns and pronouns सारे एक ग्रुप में होंगे. अब उसके साथ में let's say for example Aristotle भी आ जाता है and there are 2 protagonists that are present. सो बीथोवेन के लिए कौन सा वाला ही यूज किया हुआ है एंड एरिस्टोटल के लिए कौन सा वाला ही यूज किया हुआ है, दैट इज समथिंग यू हैव टू फिगर आउट. सो नाउन्स एंड प्रोनाउंस को पहले ग्रुप कर लेना. तो कौन सा सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, ये वाला चीज पहले कर लोगे तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट सम ऑफ द ऑप्शंस वेरी क्विकली. The second thing is in terms of chronology and tenses. तो कोई भी चीज़ अगर बोल रहे हैं कि हाँ अर्ली 1900s में ऐसे होता था, फिर मिड 1900s में ऐसे हुआ, बट नाउ समथिंग इज हैपनिंग, नाउ यू नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रेजेंट. सो फ्लो ऑफ द पैराग्राफ भी वही होगा. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड एंड धीरे 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 यू विल कम टू द प्रेजेंट एंड अगर फ्यूचर होगा तो आगे जाके होगा. सो दैट इज बेसिकली हाउ यू विल अगेन अरेंज द सेंटेंसेस दैट आर देयर इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ. दी थर्ड थिंग, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है कि स्पेसिफिक आइडिया से फिर जनरल आइडिया आएगा कि जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडिया आएगा. सीईटी के अंदर वट एवर आई हैव सीन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड लास्ट ईयर जब जो रिस्पॉन्स शीट्स थी वो रिलीज हुई थी, वी हैव सीन दैट सीईटी विल जनरली कंसिडर द जनरल आइडिया एट द टॉप. तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, फिर बताएंगे उसके अंदर का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल. सो ऑलवेज थिंक अबाउट गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. तो जेनरिक स्टेटमेंट पहले आएगा, फिर उसके बाद में से कुछ एक उसमें से चीज होगी जिसको पिक करके स्पेसिफिक 2 या 3 सेंटेंसेस आगे के बनेंगे. सो रिमेंबर दैट लिंकिंग वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब लिंकिंग वर्ड्स आई विल कवर इन दी नेक्स्ट स्लाइड, बट लिंकिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे विल टेल यू कि फ्लो कैसे चेंज हो रहा है. तो सम ऑफ अस बिलीव ऐसे कुछ होता है, अदर्स बिलीव. तो सम ऑफ अस एंड अदर्स आर शोइंग अ कॉन्ट्रास्ट. समथिंग इज हैपनिंग बट समथिंग एल्स इज हैपनिंग, ऑन दी अदर हैंड समथिंग इज हैपनिंग. तो ये सारे वर्ड्स जो होंगे लिंकिंग वर्ड्स या ट्रांजिशन वर्ड्स होंगे, ये अपने को समझ में आने चाहिए. देन वेरी इंपॉर्टेंट, यूज द ऑप्शंस. अगर समझ में आ गया है दैट बीथोवेन पहले आएगा उसके बाद ही आने वाला है एंड इफ बीथोवेन एंड ही आर बेसिकली इन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, देन 1 के बाद 2 आएगा. कोई भी ऑप्शन में अगर 2 1 से पहले आ रहा है दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर, तो उसको एलिमिनेट कर देना. सो यूज द ऑप्शंस एंड देन फिगर आउट कि कौन से ऑप्शंस बेटर वर्क कर रहे हैं. यहाँ पे एक छोटा सा हैक यू कैन यूज, स्पेशली इफ यू डोंट हैव टाइम लेफ्ट. अगर 3 ऑप्शंस हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं और 2 ऑप्शंस हैं जो बी से शुरू हो रहे हैं, मोस्टली योर आंसर इज गोइंग टू स्टार्ट विद एन ए. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी हियर. मोस्टली योर आंसर इज गोइंग टू स्टार्ट विद एन ए. सो मेक श्योर दैट यू आर मार्किंग वन ऑफ द ऑप्शंस दैट स्टार्ट विद एन ए. The other thing that I will do is I'll also look at the concluding statement. अगर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है समझने के लिए कि क्या करना चाहिए, what I will do is I will look at the options कि कितनी बार एक स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ रहा है.
अगर डी 3 बार कंक्लूजन में आ रहा है तो डी विल बेसिकली बी द विनर फॉर मी. सो माय पैराग्राफ हैज टू स्टार्ट विद एन ए एंड विद अ डी. उसके अंदर जो भी ऑप्शन फिट होगा दैट आई विल मार्क एज माय आंसर एंड मूव हेड. ये आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली इन टर्म्स ऑफ गेस वर्क. देन मल्टी क्वेश्चन वाला अगर आता है, सिचुएशन आती है, जो मैंने बोला टफेस्ट क्वेश्चन टाइप आता है, तो उसके अंदर सिर्फ बिगिनर एक ओपनिंग सेंटेंस होगा, वो ढूंढ के निकाल लेना कि क्या है, मार्क दैट एज योर आंसर, बाकी सबको सेम ऑप्शन मार्क कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ओपनिंग और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आ रहा है, मार्क दोस टू एंड बाकी के सारे ब्लाइंडली मार्क कर देना. द मोर टाइम यू स्पेंड trying to decipher एक jumbled paragraph and trying to answer multiple questions, उतना ज़्यादा तुमको लॉस होने वाला है, बिकॉज जनरली इसके अंदर एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती. एंड अंडरस्टैंड दैट जम्बल्ड पैराग्राफ्स के अंदर यू विल ऑलवेज मेक मिस्टेक्स इन टर्म्स ऑफ पेयर्स. तो अगर 3-1 के जगह पे 1-3 लिख दिया, देन बोथ द आंसर्स आर गोइंग टू बी रॉन्ग. सो प्लीज डोंट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर. जो भी पक्का पता है, बिगिनर और एंड बहुत ईजी होते हैं फाइंड आउट करने के लिए. 5 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी 3 को सेम ऑप्शन मार्क करके आ जाना. यू विल गेट 3 मार्क्स आउट ऑफ 5 एंड this will happen in a matter of a couple of minutes, which is a very good return on investment. But अगर पूरा का पूरा पैराग्राफ ढूंढने के लिए निकल जाओगे और अगर टाइम नहीं बचा है, then you are going to end up in a lot of trouble. So these are the strategies you need to follow. लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ये एक लिस्ट है यहाँ पे दी हुई है. ऑपोजिशन इज बट, इंस्टेड, हाउएवर, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये सारे ऑपोजिशन इंडिकेट करते हैं. तो एक आइडिया है और उसके बाद अगर कुछ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया बता रहे हैं तो वहाँ पे बट, इंस्टेड, हाउएवर, ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी. सपोर्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल, इन फैक्ट, रादर, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी. रिलेशन मतलब कौन किसके रिलेशन में कब आता है. सो अदरवाइज, सिमिलरली, वाइल, आफ्टरवर्ड, बिफोर, ये सारे आएंगे रिलेशन के अंदर. एंड कंक्लूजन विल जनरली बी द लास्ट स्टेटमेंट. फाइनली, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, दस, देयरफॉर, ये सारे आएंगे लास्ट सेंटेंस के अंदर. सो मेक श्योर दैट यू नो दीज लिंकिंग वर्ड्स वेरी वेल एंड यू कैन यूज दिस नॉलेज टू क्रैक द जंबल पैराग्राफ्स दैट अपीयर एट द CET.